Hi students, I welcome to all of you to this session of Polity. Dear students, myself Dheeraj Mondal, Assistant Professor JS College of Engineering, Kolani. As you all know that we JS College of Engineering, we have taken an initiative to work from home. So here I am going to discuss about the fundamental rights. You know that last class I discussed about the citizenship rules regulation, what is the procedure to get a citizenship in India, and how we can lose the citizenship. That was discussed in earlier class 20, your lecture number 21. But here it is your fundamental rights lecture number 22. Let us discuss what is fundamental rights and what are the provision given to you in the fundamental rights. You know the fundamental rights means is your अधिकार, नैतिक अधिकार, मतलब आपका, आप एज ए इंडियन हो तो आपका क्या राइट है। ऐसा नहीं है कि कोई आके आपको थप्पड़ मार दे या फिर मान लो आप कुछ बोले और आपको जेल के अंदर घुसा दे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते आपको आपका कुछ डिग्निटी है, कुछ रिस्पेक्ट है, कुछ फ्रीडम है। ठीक है, और अगर वो फ्रीडम आपको कोई मतलब वो हनन करे तो आप क्या कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में अपेयर हो सकते हो या फिर हाई कोर्ट में अपेयर हो सकते हो। दैट यू नो। So when we were discussing the articles of constitution, then some part was discussed, but again, as this is your specially lecture on fundamental rights, we are going to discuss it again. So if you listen to my lecture, so इतना बार जो आपका आर्टिकल आएगा, इतना बार आएगा कि आपका ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएगा। सो ये अच्छा से आपको सुनना है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस। देखो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली इट इज़ गिवन इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 12 से 35। सो 12 से 15 तक ये पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली द फंडामेंटल राइट्स इज बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। द फंडामेंटल राइट्स ये जो पार्ट है इसको बोला जाए सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया पार्ट। ठीक है, मोस्ट डिस्क्रिप्टिव पार्ट ये इसको बोला जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या बोले कि आर्टिकल 35 टू 12 टू 35 क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वेयर वी हैव ड्रॉन और फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन, दिस इज कम फ्रॉम USA, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA. You know in constitution in USA there are mainly 7 article through which all the USA is basically ruled. Okay, now in USA it is called your Bill of Rights. In our India it is called fundamental rights, but in USA it is called Bill of Rights. Now the concept of fundamental rights is it is very that means you can say be very ancient, you can say, or means your in 1215 the concept of fundamental rights was given by King John. Basically he is from Britain. Okay, so this concept was given in Britain, in the constitution of Britain by King John in 1215. So it is very old, you can say. Now you know that the part 3 of the constitution also described as the Magna Carta of the constitution. Very important. That means it can be asked which part of the constitution is called Magna Carta of the India. Of Magna Carta of India means it is your part 3, that is your fundamental rights. And what is the meaning of this? Basically it means the greater charter of liberties. एक ऐसा चार्टर तैयार किया गया जो लिबर्टी मतलब आपको फ्रीडम दिलाए। ठीक है, तो ये है आपका फंडामेंटल राइट्स एंड इट इज़ बेसिकली यू कैन से पॉजिटिव in nature in the point of view of a particular of an individual. मतलब
एक पॉजिटिव साइन है कोई इंडिविजुअल के ऊपर, मतलब कोई आदमी के ऊपर, ठीक है, कोई पर्सन के ऊपर, बट ये नेगेटिव रहता है स्टेट के ऊपर, क्योंकि ये कोई स्टेट का कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शन, स्टेट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन डालता है, कोई आदमी के ऊपर कुछ अगर रूल्स रेगुलेशन बनाना है ऐसे कुछ, ठीक है। सो मेन जो चीज़ हम बताना चाहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स ऐसा एक चीज़ है जो आपका डिग्निटी मेंटेन करे, आपका कुछ राइट्स, जो आपका कुछ इक्वालिटी है इस सोसाइटी में वो मेंटेन करे, ठीक है। आपका कुछ फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपका कुछ अगर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो ये सारा की सारा चीज़ क्या आपको फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोटेक्ट करे, ठीक है। आपका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कुछ कल्चर होगा वो भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, आपका रिलीजियन का प्रोटेक्ट करेगा। और क्या, इफ समबडी योर वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स और समबडी you humiliating you in any method, any way, then you may proceed in Supreme Court as well as High Court. And in fundamental rights article 32 gives you a power to move Supreme Court if somebody violate the fundamental rights of you. Okay, so that is coming the REIT. We know that last few days previous class I discuss what is REIT. So again we will be discussing, don't worry, but you just listen what I am going to say here. Now next point, it contains a very long and comprehensive list of justiciable fundamental rights. देखो जस्टिसेबल बोले तो ये जस्टिसेबल बोले तो कोई भी आप फंडामेंटल राइट्स आपको इसमें कुछ वायलेट करे तो आप जस्टिस आपको मिलेगा, ये आपका राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर इलाबोरेट देन एनी अदर कंट्री इंक्लूडिंग यूएसए, ठीक है, ये तो ऑलरेडी आई डिस्कस्ड। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये क्या क्या गारंटी करता है, कोई पर्सन को डिस्क्रिमिनेशन नहीं मतलब ना करो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन से ये आपका सिक्योर करते हैं कि आपका, दैट मीन्स अगेन I will want to say that example, if you are a son of president and if you are a son of a carpenter, then same rights will be given as you are the citizen of India, and fundamental rights जो भी है सबके लिए सेम है, ठीक है। देखो क्या करता है ये, अपहोल्ड करता है इक्वालिटी, डिग्निटी एंड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, ये सारा के सारा ये अपहोल्ड करता है फंडामेंटल राइट्स। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दे प्रिवेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटेरियन एंड डेस्पोटिक। देखो ऑथोरिटेरियन डेस्पोटिक ये सारा के सारा चीज़, इसका मतलब जो बोला जाता है कि सॉवरेन, स्वैराचारी जानते हो, मतलब जो राज करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये ऑथोरिटेरियन बोले तो कर्तृत्व आप मतलब जो बोले तो आपके ऊपर जो अथॉरिटी दिखाएगा, तो ये जो है ये प्रिवेंट करता है। ये ऐसा कुछ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जैसे जहाँ जो कहाँ पर है, मान लो कोई जहाँ पर अभी भी राजा का रूल चलता है ना, वो सब जगह में है। तो ब्रिटेन में देखो क्या होता है, अथॉरिटेरियन कुछ चलता है, रानी होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज़ डेस्पोटिक मीनिंग सेम होता है, इस टाइप का जो है ये नहीं चलता है, ठीक है। मतलब जो हियरार्की और जो मान लो कि नेपोटिज्म, अब खून का हम मेरा बेटा मेरा ही मतलब जो यहाँ पर अथॉरिटी मेन में अथॉरिटी रहेगा, मेरा बेटा है, खून का रिश्ता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर जो है सबके लिए सेम है और ये रिपब्लिक है हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये अथॉरिटियन और डिस्पोटिक जो है, तो ये क्या करता है, जो ऑटोक्रेसी जो चलता है ना, इंडिविजुअलिज्म, वो सारा के सारा चीज़ ये सब यहाँ पर नहीं चलता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर प्रोटेक्ट लिबर्टीज ऑफ फ्री एंड फ्रीडम ऑफ पीपल अगेंस्ट द इन्वेशन बाय द स्टेट। तो क्या प्रोटेक्ट करते हैं, लिबर्टी, स्वाधीनता, फ्रीडम, ठीक है, लिबर्टी एंड फ्रीडम टू द पीपल अगेंस्ट द इन्वेशन बाय द स्टेट, ठीक है। ये सारा का सारा चीज़ प्रोटेक्ट करते। दे एम एट एस्टैब्लिशिंग ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मेन। बोले तो कोई आदमी, कोई पीपल के ऊपर पीपल कोई रूल नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट और लॉ में जो लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है,
वही बस यहाँ पर इस्टेब्लिश होगा, वही रूल चलेगा, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट मेटेरियल इंटेलेक्चुअल मोरल एंड स्पिरिचुअल ऑफ द इंडिविजुअल, तो ये सारा के सारा सिक्योर करता है कौन? फंडामेंटल राइट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर ओरिजिनलिटी of constitution. Basically it provides 7 fundamental rights, you know, and initially it was 7 fundamental rights, but right now it is 7 minus 1, that is 6 fundamental rights. Now what about that one, which one is deleted from the fundamental rights? That I am coming here, coming afterward, right? So first of all, your right to equality, it is coming under article 14 to 18. Okay, equal rights for all. Right to freedom 19 to 22. Right against exploitation 23 to 24. Right to freedom of religion 25 to 28. Right cultural and educational right 29 to 30. Right to property 31. This part, this 6 number right, it is basically eliminated. Okay, deleted from the fundamental right. Right to constitutional remedy article 32. So let us discuss. First of all, right to equality. So as you all know, this part basically it is very lengthy and very important. In every exam you will see question from this fundamental rights. Almost 60 to 70% syllabus will be covered. Question will be coming from this part, fundamental rights and DPSP, directive principle of state policy. So don't ignore this lecture, okay? And all this article what is given in our right to equality, that is very important, and you have to remember all this. You have to remember. So first of all, let us discuss the right to equality, which is coming under article 14 to 18. So article 14, you know that right to equality means equal rights for all. Basically article 15 says that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India. Again, basically right, this article 14 says the state shall not deny to any person equality before law, मतलब लॉ के ऊपर सब सेम है, ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन, और लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा, सबके लिए सेम रूल होता है, ठीक है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड इन आर्टिकल 14 बेसिकली, ओके। बेसिकली इट इज द एंड इट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन, that is statutory corporation कंपनीज एट्सेट्रा, ऑल सारा की सारा जगह जो है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ ये जो चलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोला जाता है? तो ये है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। अब ये इसके ऊपर डिटेल्स लेक्चर बन सकता है, बट देखते हैं हम कितना बना पाएंगे, ठीक है। सो नाउ आर्टिकल 15 बेसिकली इट सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसके ऊपर कोई स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, वॉट एवर योर रिलीजियन, वॉट एवर योर रेस, वॉट एवर कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 basically it is basically providing the opportunity on public employment, okay. Basically it says that there shall be equality of opportunity for all the citizen in matter relating to the employment or appointment to any office under the state. Clear? तो आपको जो है सब मतलब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। कोई भी इंडियन हो तो वो आईपीएस भी बन सकता है, आईएएस भी बन सकता है, डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कोई है आपका, मान लो कि कारपेंटर का बेटा है तो ये नहीं बन पाएगा आईएएस ऑफिसर, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये 16 बोलता है, ठीक है। अब देखो 17 क्या है?
17 ये सारा के सारा राइट टू इक्वालिटी के अंदर पड़ता है, ठीक है। 17 है, इट सेज बेसिकली इट सेज दैट अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। अनटचेबिलिटी बोले तो जो छूओगे तो आपका मतलब आप कुछ क्राइम कर दिया, ऐसे कुछ है। मतलब जो पुराना दिन में चलता था, जो जानते हो बी आर अम्बेडकर फेस करता था ना, वो दलित हुआ करता था उस टाइम, हाँ। तो नीच जात ऊंचा जात ऐसा कुछ बोला जाता है जो भी है। तो अनटचेबिलिटी बोले तो कोई टास्क करेगा तो वो टास्क नहीं कर सकते, आपका अलाउ नहीं, इस टाइप का चीज़ है। पानी नहीं पी सकते, एक कटोरा से आप पानी नहीं पी सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये सारा के सारा से तो ये सारा की सारा चीज़ एबोलिश किया गया, ठीक है। तो ये 17 क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी जो है एबोलिश होना चाहिए, ठीक है। 18 क्या है, 18 बेसिकली इट सेज दैट नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कॉन्फर्ड बाय द स्टेट। ओके, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई टाइटल आप नहीं ले सकते, कोई फॉरेन स्टेट से, कोई इंडिया से भी। मतलब टाइटल बोले तो जो है रानी, राजा, हाँ। अब अगर हम बोलेंगे ना प्रिंस, तो देख आप जानते हो प्रिंस चार्ल्स जो है अभी कोरोना इफेक्टेड है, तो प्रिंस बोला जाता है। नाम के पहले प्रिंस, नाम के पहले महारानी, नाम के पहले प्रिंसेस, इस टाइप का जो ये टाइटल है ये आप नहीं ले सकते अगर आप इंडिया का हो तो, ठीक है। सो व्हाट अबाउट भारत रत्न, पद्म विभूषण? So it is basically allowed. The awards Bharat Ratna, Padma Vibhushan and Padma Shri called as the national award would not amount to title within the meaning of Article 18 Clause 1। देखो ये जो है ये सारा के सारा ये नेशनल अवार्ड है, तो ये आप ले सकते हो, बट ये आपको क्या किया जाए, आपका रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, कोई फील्ड में आप अच्छा काम किए हो इसलिए, तो बट ये सब टाइटल में नहीं आता, ठीक है। तो ये 14 to 18 समझ में आ गया आई थिंक। सो दिस इज in this lecture right to equality, I hope it is clear, and then from the next class we will be discussing the right to freedom and rest of the part. So today up to this, next class we will be discussing from this right to freedom, और मैंने यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।